Welcome to 2x. Today we are going to study about The Tiger by William Blake. We know that The Tiger is one of the most celebrated poems created by Blake. So before proceeding to the line by line analysis of the poem in Hindi, I just want to give you a few information that's required to understand the context and the meaning of the text very easily. So let's check first what the source of the poem. The Tiger is taken from Blake's Songs of Experience. A similar, almost similar but diverse sequel is there, created by Blake. That's the Songs of Innocence. तो टाइगर ब्लेक के जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वह से लिया गया है. और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, you should know that songs of experience stands for cruelty, cleverly, and this type of features. On the other hand, uh, songs of innocence stands for mild nature and gentleness, which are generally represented by animals like lambs. On the other hand, songs of experience is represented by ferocious animals like a tiger, lion, बाघ, सिंह. ये जो शेर, ये जो होता है, यही संग्स ऑफ इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका सोर्स है द टाइगर इज टेकन फ्रॉम द टाइगर, ब्लेक्स के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है. सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट the songs of innocence, where from the poem the lamb has been taken in my latest session. So let's check what we have in the second point. In Blake's symbolic system means pratikatyak pranali. In Blake's symbolic system, the larger beast मतलब बड़ा प्राणी, particularly lions and tigers stand for their energy. I have already said this. ब्लेक की जो प्रतीकात्मक प्रणाली है उसमें शिकार के बड़े जानवर, मैंने पहले जानवर जैसा लायंस, टाइगर्स अपनी ऊर्जा के लिए अपनी ऊर्जा का रिप्रेजेंट करता है. So songs of experience is represented by those ferocious animals that we know for their cruel nature, strength, and energy. Next, the image of the tiger not only indicates energy but also the creative power behind which had made this creature. So, the image of the tiger. ये क्या होता है, बाघ के जो छवि है केवल ऊर्जा का संकेत देती है ये नहीं, बल्कि इसके पीछे क्रिएटिव पावर, दैट मीन्स द पावर ऑफ गॉड, रचनात्मक शक्ति, जिसने टाइगर जैसा एक फेरोसियस एनिमल को क्रिएट किया है, विच हैड मेड दिस क्रिएटर, जिसने ऐसा एक भयानक प्राणी का निर्माण किया है. सो यह 3 पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द टाइगर इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. और ब्लेक्स के जो सिंबॉलिक सिस्टम्स है उसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के तहत रिप्रेजेंट करता है बड़ा प्राणी जैसा लायंस, टाइगर, जिसके पास स्ट्रेंथ है, एनर्जी है और फेरोसियस नेचर है. तीसरा पॉइंट जो है द इमेज ऑफ द टाइगर, इसका जो इमेज है उसका कोई दूसरा मीनिंग भी है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है. वो कौन से, इट्स नॉट द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर, स्ट्रेंथ ऑफ एन एनिमल. ये सिर्फ एक जंतु का क्षमता और ऊर्जा नहीं है, ये जो ओमनीपोटेंट गॉड है जिसके क्रिएशन ये सब है उसी का पावर का रिप्रेजेंट करता है ये प्राणी. दैट मीन्स the power of the god is represented indirectly by the tigers. Before proceeding to the main text analysis, I just want to give you another
information that's about central thought. You should also know about this, the central thought, range and creativity of the divine power. That means दैवीय शक्ति की सीमा और रचनात्मकता, creativity or the power of creation. That's nothing but the divine power, दैवीय शक्ति, जिसके पास creations का power होता है. Got synthesizing force means संश्लेषण शक्ति. Pratik, to keep adverse and contrasting means pratikul and different elements together in harmony. प्रतिकूल और विपरीत तत्वों को एक साथ सद्भाव में रखने के लिए भगवान के संश्लेषण शक्ति, अर्थात भगवान में ऐसा एक संश्लेषण शक्ति है जिसमें वो और गॉड एडवर्स एंड कंट्रास्टिंग, दैट मीन्स विपरीत तथ्यों को एक साथ रखने के एक यूनिक पावर है, यूनिक क्षमता है, यूनिक ऊर्जा है. थर्ड पॉइंट, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व of the fierceness, ferocious nature of the tiger and the gentleness of the lamb and the भव्यता, lamb के जो मेमने का भव्यता दूसरों को, बाकी उग्रता और मेमने की सज्जनता का सह अस्तित्व के बारे में बताया गया है. और गॉड क्रिएशंस ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं कि ये बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स prevail at the same time. So central thought, while studying about central thought, though I have not given you in an elaborate form, but 3 points you should remember. That's the creativity of the divine power, अर्थात दैवीय शक्ति की सीमा और रचनात्मकता. गॉड सिंथेसाइजिंग फोर्स, दैट मीन्स प्रतिकूल और विपरीत तथ्यों को एक साथ सद्भाव में रखने के लिए भगवान की संश्लेषण शक्ति. Then coexistence, सह अस्तित्व of fierceness of the tiger and the gentleness of the lamb, बाकी उग्रता और मेमने की सज्जनता का सह अस्तित्व, एक साथ प्रिवेल करने का, रखने का, ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पावर है, उसी के बारे में. So let's proceed to the poem. Tiger, tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Let's check some meaning of the text. Burning bright. Burning bright means चमकदर चमक. तो बाघ ऐसा प्राणी है, चमकदर चमक के कैसे क्या होता है, जो बाघ के शेर्स के आइज होता है वो ड्यूरिंग द नाइट वो चमकती है, उसी के बारे में बताया गया है. What immortal hand or eye in the forest of the night, what immortal hand or eye, कौन सी वो अमर हाथ और पैर जिसने इस प्राणी को क्रिएट किया है, कौन सा अमर प्राणी. अमर प्राणी मतलब नन बट द omnipotent गॉड और द ईश्वर. could frame thy fearful symmetry. The meaning of fearful symmetry is भयानक प्रकृति का निर्माण. फ्रेमिंग द fearful symmetry मीन्स टाइगर की भयानक प्रकृति का निर्माण. सो क्या होता है, चमकदर चमक, फर्स्ट पैराग्राफ में 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से, एक चमकदर चमक, दूसरे कौन सा अमर प्राणी, किसी अमर प्राणी और के बारे में बताया गया है, वो अमर प्राणी गॉड ही है, और टाइगर की भयानक प्रकृति का निर्माण के बारे में बताया गया है. जो चल देखते हैं क्या है. अंधेरे रात के जंगल में चमकदर चमक की कल्पना करते हुए वक्ता सीधे एक बाघ को संबोधित किया. वक्ता पूछता है कि कौन सा अमर प्राणी है, कौन सा अमर प्राणी और कौन सा इमॉर्टल हैंड है जिसने बाघ जैसा एक फेरोशियस प्राणी का निर्माण किया है. सो आई थिंक दिस क्लियर. So the main features of this first stanza is tiger जो एक फेरोसिस प्राणी है, जो चमकदार चमक दिखाई देती है रात के अंधेरे में, फॉरेस्ट में, जंगलों में. एंड द पोएट सेज दैट वो कौन से इमॉर्टल हैंड है जिसने इसका क्रिएशन किया. दैट मीन्स वो गॉड ही है जिसने ऐसा फेरोसिस प्राणी को निर्माण किया है. could frame the fearful symmetry. Fearful symmetry means भयानक प्रकृति. So I think you have clear idea from the first stanza. If you have any problem, you can ask me in the description box. Next, proceed to the next chapter or next stanza. In what distant deeps or skies
burn the fire of thine eyes, of what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire. So let's check the features of this stanza. बाकी उग्र आंखों को दूर दूर या आकाश में बनाया गया है. In what distance deep skies burn the fire of thine eyes. So मैंने I have tried my level best to give you a better understanding of the poem so that you can understand it very easily. So मैंने कुछ फीचर्स को इकट्ठा किया, मैं फीचर्स को डिवाइडेड किया, डिफरेंशिएट किया फ्रॉम द पोएम, सो दैट यू कैन जस्ट रीडिंग द पॉइंट्स यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ. सो देखिए, बाकी उग्र आंखों के दूर दूर या आकाश में बनाया गया है. इसका मीनिंग फर्स्ट टू लाइन्स, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स ऑफ स्काइज बर्न द फायर ऑफ द नाइट. सो शेर और बाघ की आंखों में जो आँख होता है और उसमें जो ऊर्जा होता है, उसको तो निर्माण करना इस धरती में पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद स्वर्ग जहाँ ईश्वर का स्थान है वह ही इसका क्रिएशंस होता है. वो कौन सी जगह है? दूर दूर या आकाश. और व्हाट विंग्स डियर ही एस्पायर, और व्हाट विंग्स डिड ही हैज विंग्स. उसके पास क्या पंख है जिसने बाघ जैसा एक फेरोसिस प्राणी का निर्माण किया है. व्हाट द हैंड डियर सेज द फायर. उसकी हाथ में, उसमें इतना ताकत है, इतना ऊर्जा है जो इतना जोखिम भरा काम कर सकता है. जोखिम भरा काम मतलब शेर बाघ जैसा फेरोसिस प्राणी का निर्माण करना. तो देखिए, इस 4 लाइन्स का हमने हिंदी में इसका मीनिंग द सारांश यह ऐड कर दिया. क्या बाघ की रचयिता के पास पंख थे और किसका हाथ इतना जोखिम कर सकता था कि बाघ पैदा कर सके. सो इट्स क्लियर दैट बाघ एक फेरोसिस नेचर का रिप्रेजेंट करता है और उसको क्रिएशन इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है. शायद समवेयर इन द स्काई it was created by the omnipotent God, and the creation is so powerful, so dangerous, and so strengthy, then its creator must be more powerful. So the tiger is also representing here the power and the strength of its creature. That means the power of God. So I think I'm clear. Let's proceed to the next paragraph. And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnaces was thy brain? What the anvil, what dread grasp, dearest deadly terror's claps? Let's check what we have in the word note. शोल्डर मीन्स कंध होता है, लेकिन यहाँ पे शोल्डर एंड आर्ट ये एक साथ, जिसका मीनिंग होता है प्रयास और कोशिश. प्रयास और कोशिश. could twist the sinews of thy heart. Sinews means मांसल, पेशी बहुल. जिसने एक पेशी बहुल स्ट्रिंग शरीर का निर्माण किया है. एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, दिल की धड़कन बढ़ा दी. वो ड्रेड हैंड, जो फेरोसिस हैंड है, जिसका भयानक हाथ और खूंखार पैर, जिसका हाथ पैर दोनों खूंखार है. सो देखिए, कुछ मीनिंग दिया गया है शोल्डर एंड आर्ट. दैट मीन्स प्रयास और कौशल और कोशिश. The sinews of the heart, the meaning of which is मांसल, शरीर का निर्माण. Heart began to beat means दिल की धड़कन बढ़ा दी. Dread hand and dread feet means भयानक हाथ और खूंखार. तो let's check what we have. इसका मीनिंग क्या है? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart. भक्त इस तरह की प्रयास और कौशल की कल्पना करता है जो बाघ को बनाने में लगा होता है.
ये सोचकर कि बाघ के मांसल शरीर का निर्माण करने के लिए, एंड व्हेन दाई आर्ट हार्ट बिगन टू बीट, वो ड्रेड हैंड एंड वो ड्रेड फीट, उसका मांसल और पावरफुल स्ट्रेंथ दी बॉडी को निर्माण करने के लिए कोई वीक क्रिएटर्स संभव नहीं है। सो इसको निर्माण करने के लिए कौन पर्याप्त मजबूत होगा, किसके हाथ पैर थे जिन्होंने बाघ का दिल धड़कना शुरू कर दिया। सो ये omnipotent गॉड है जिसके ऊर्जा से, जिसके पावर से शेर बाघ जैसा प्राणी का क्रिएट हुआ है, उसका दिल धड़कती है। और ये जो हैंड्स है जिसने इसको क्रिएशन किया वो तो भयानक हाथ होगा ज़रूर, और उसका पैर भी खूंखार होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? What the hammer? Hammer, you know hammer क्या होता है? एक हैमर है, कौन सी हैमर यूज्ड हुआ है? What the chains, कौन सी chains को क्रिएटर ने यूज़ किया है? इन व्हाट फर्नेस, और कौन सी फर्नेस कौन सी है जहाँ बाघ की ब्रेन का, मस्तिष्क का निर्माण हुआ है? व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैप्स। ईश्वर, दैट मीन्स क्रिएटर्स में ऐसा पावर है जिसके खातिर, जिसके तहत इसने बाघ जैसा एक वेरी फेरेशियस प्राणी को निर्माण किया है। और उसको निर्माण करने के लिए जो हैमर्स, चेन्स, फर्नेस की ज़रूरत होता है वो अनोखा होती है, उसका तो इस्तेमाल करना कोई साधारण क्रिएटर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ गॉड है, ये गॉड है, omnipotent गॉड है जिसने बाघ, और दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिप्रेजेंटिंग एक्सपीरियंस, उसको क्रिएट किया है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट chapter. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? So here the meaning is very clear. बख्ता एक ऐसे समय का उल्लेख किया है जब सितारों ने अपने हथियार छोड़ दिए और स्वर्ग पर अपने आंसू बरसाए। इस समय बख्ता को आश्चर्य होता है क्या निर्माता ने बाघ को देखा और उसकी उपलब्धि पर मुस्कुराया, और क्या बाघ की उसी रचना करने बनाया था जिसने मेमने को बनाया था। तो क्या होता है, when the stars threw down spears, suppose the stars have thrown away their weapons and watered heaven with their tears, and they started watering the heaven with their tears. उसका जो क्या होता है, मैं हिंदी में बहुत ही वीक हूँ, जो आंसू है वो बरसने लगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या क्रिएटर ने अपना क्रिएशंस को देखकर स्माइल किया, मुस्कुराया? क्या डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, क्या वही एंटिटी है जिसने लैम जैसा मीक, मिल्ड और जेंटल प्राणी को बनाया, उसी ने टाइगर जैसा फेरोसिस प्राणी को बनाया? Tiger, tiger, burning bright. This is the last stanza of the poem. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye dare from thy fearful symmetry? This is very much like the first stanza of the poem. Here, the poet says that tiger तो burning करता है very brightly in the forest of the night. रात में जो जंगल है वह जो शेर का आइज होता है वो चमकती है। एंड जो एक इमोर्टल हैंड्स, जो अमर शक्ति, ऊर्जा जिसने इस बाग को क्रिएट किया है। एंड इन दिस स्टैंजा द पोएट नॉट ओनली असर्ट्स हिज व्यूज, वक्ता ने सिर्फ ऐसा नहीं बताया कि किसने इस फेरोसिस प्राणी को बनाया, लेकिन इसने ये भी बताया हाउ ही डेयर, दैट मीन्स उसमें इतना
ताकत है कि उस ये भी बना दिया। सो इस स्टैंजा में वक्ता ने बा को संबोधित करता है और इस बार न केवल ये सोच रहा है कि इस भयानक जानवर को कौन बना सकती है। Till now we have seen that who can build, who can create this ferocious animal, but here the narrator wants to say the next for किस में इतना हिम्मत है, किसने इतना हिम्मत करेगा कि शेर बाघ जैसा फेरोसिस प्राणी का क्रिएट हो। सो I think the poem is clear to you. Actually, I'm very weak in Hindi, so there are some problems in telling you the meaning of the poem in Hindi to you. But I think this will help you for your preparation for different exams. And in course of time, as I have liking for Hindi, I will develop my language, and one day I will speak in clear Hindi, and you will understand very clearly what I want to say. So thank you for watching the video, and if you like this one, you can subscribe my channel and can stay with me. So thank you again for watching the video.